السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج سعودی، دبئی، بحرین اور قطر میں عید ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پر کل عید کا تہوار منایا جائے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کامنٹ باکس کے ذریعے سے عید کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 12 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو آپ کل یعنی کہ عید کے دن ضرور کریں، کیونکہ ان کاموں کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کے دن کیا کرتے تھے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ خوبصورت ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم کو عید منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا کرم ہے۔ یاد رکھیں، عید کا دن ہر مسلمانوں کے لیے ایک بہت خاص دن ہے، کیونکہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے انعام حاصل کرنے کا دن ہے، کیونکہ عید کا دن اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ عید کے دن سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے، یعنی کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مگر افسوس، کچھ لوگ عید کے دن بھی ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان رمضان کے مہینے میں قید تھے، رمضان کے مہینے میں بندھے ہوئے تھے، وہ اب کھل چکے ہیں اور اپنی رہائی کا جشن منا رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس بار عید کے دن کوئی بھی ایسا ویسا کام بھول کر بھی نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو اور شیطان خوش ہوتا ہو، بلکہ آپ عید کے دن یہ 12 کام ضرور کریں، کیونکہ یہ 12 کام کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کے دن کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، بال اور ناخن کاٹنا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا کام ہے آپ عید کی نماز کے پہلے حجامت بنوا لیں، یعنی کہ اپنے بال وغیرہ صاف کروا لیں اور ناخن بھی کاٹ لیں، کیونکہ اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ عید سے پہلے یہ کام ضرور کر لیں۔ یاد رکھیں، بال اور ناخن کاٹنا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ پیارے دوستو، دوسرا کام ہے غسل کرنا۔ آپ عید کے دن غسل بھی ضرور کریں۔ اس کا مطلب صرف نہانا نہیں ہے، یعنی کہ صرف صابن اور پانی سے نہانے کا نام غسل نہیں، بلکہ آپ عید کے دن پاک اور صاف ہونے کے لیے غسل کریں اور مسواک بھی کریں۔ یاد رکھیں، عید کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 3، پاک اور صاف کپڑے پہننا۔ پیارے دوستو، تیسرا کام ہے عید کے دن پاک اور صاف کپڑے پہننا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید کے دن نئے کپڑے ہوں گے تبھی عید ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سب سے اچھی اور بہترین کپڑے ہوں وہ پاک صاف ہیں تو آپ عید کے دن ان کپڑوں کو پہن لیں اور عید کی نماز ادا کر لیں، اور اگر آپ کے پاس میں خوشبو ہو تو آپ خوشبو بھی لگا لیں، کیونکہ عید کے دن عمدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا بھی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 4، گھر سے ہی وضو بنا کر جانا۔ پیارے دوستو، چوتھا کام ہے اپنے گھر ہی وضو بنا کر عید گاہ میں جانا اور صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح گھر میں وضو بنائیں، اس کے بعد میں آپ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، وہاں پر جا کر آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد میں آپ عید گاہ میں جائیں اور عید کی نماز ادا کر لیں۔ نمبر 5، عید گاہ میں جلدی جانا۔
प्यारे दोस्तों, पांचवा काम है ईदगाह में जल्दी जाना और हो सके तो जहां तक ईदगाह में पैदल जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ईदगाह में पैदल ही जाएं, यानी कि किसी सवारी से ना जाएं, क्योंकि ईदगाह में पैदल जाना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 6, 3 खजूर खाकर ईदगाह में जाना। प्यारे दोस्तों, छठा काम है ईद में कुछ खजूर या 3 खजूर खाकर जाना, क्योंकि ईद के दिन कुछ खजूर खाकर भी ईदगाह में नमाज के लिए जाना। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है, आप ईद के दिन 3 खजूर खाकर ईदगाह में जाना पसंद फरमाते थे। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम भी ईद के दिन ईदगाह में 3 खजूर खाकर जाएं। नंबर 7, ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, 7वां काम यह है कि अगर आपने अभी तक सदकाए फित्र अदा नहीं किया तो आप ईद से पहले अदा कर दीजिए, क्योंकि ईद की नमाज से पहले सदकाए फित्र अदा करना भी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 8, प्यारे दोस्तों, 8वां काम यह है कि आप ईद के दिन जब भी ईदगाह में जाएं तो पूरे रास्ते तकबीर पढ़ते हुए जाएं, क्योंकि ईद के दिन घर से नमाज की अदायगी तक बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए ईद के दिन आप जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो पूरे रास्ते आप अल्लाहु अकबर का विर्द करते हुए जाएं। नंबर 9, गरीबों की मदद करना। प्यारे दोस्तों, 9वां काम है कि आप ईद के दिन दिल खोल कर गरीबों की मदद करना, यानी कि जरूरतमंदों की हेल्प करना, क्योंकि याद रखें ईद के दिन गरीबों की मदद करना भी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद ईदगाह में जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनके पास में एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा है। ये देखकर आप गमज़दा हो गए, इसलिए फौरन आप उस बच्चे के पास गए और उससे रोने की वजह पूछने लगे। तो उस बच्चे ने बताया कि आज ईद का दिन है और मेरे पास में पहनने को कपड़े नहीं, क्योंकि मैं एक यतीम हूं और मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। बच्चे की ये बात सुनकर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस छोटे बच्चे को अपने साथ लिया और वापस अपने घर आ गए। फिर आपने कहा, हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, फातिमा तुम्हारी बहन है और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हैं। उसके बाद मैं अपने इस यतीम बच्चे को खुद अपने हाथों से तैयार किया और उसको नए कपड़े पहनाए, और यही नहीं बल्कि आपने उसको खूब प्यार भी दिया ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और मक्का की गलियों से गुजरते हुए ईदगाह की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में वो बच्चा जोर जोर से कहने लगा, आज ईद का दिन है, आयशा मेरी माँ है, फातिमा मेरी बहन है। यानी कि उस यतीम बच्चे को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो पूरे रास्ते इस तरह से सबको बताते हुए ईदगाह की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों, सही मायने में ईद का मतलब यही होता है कि हम हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी हमेशा खुश रखें, और ईद के दिन गरीबों और यतीमों का भी ख्याल रखें, यानी कि गरीब लोगों की भी मदद करें। इसलिए हमारे यहाँ कल ईद है, ईद के दिन आप भी गरीब लोगों का जरूर ख्याल रखें और कल आप भी गरीब और बेसहारा लोगों की दिल खोल कर मदद करें। याद रखें, ईद के दिन गरीबों की मदद करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। नंबर 10, खुतबा गौर से सुनना। प्यारे दोस्तों, 10वां काम है ईद के दिन खुतबे को गौर से सुनना। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद के दिन 2 रकात नमाज पढ़कर निकल जाते हैं, खुतबे को नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो वो गौर से नहीं सुनते। इसलिए आप ऐसी गलती भी ईद के दिन ना करें। आप ईद के दिन खुतबा भी गौर से और ध्यान से सुने।
नंबर 11, मुसाफा करना। प्यारे दोस्तों, 11वां काम है ईद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना। क्योंकि याद रखें, ईद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 12, बीमार पुरसी करना। प्यारे दोस्तों, 12वां और आखिरी काम है बीमार पुरसी करना, यानी कि जो लोग अपनी बीमारी की वजह से अपने घर से नहीं निकल पाते या ईदगाह में नहीं जा सकते, आप ईद के दिन ऐसे लोगों के पास जाएं और उनकी बीमार पुरसी करें, यानी कि उनका हाल चाल जाने। याद रखें, ईद के दिन बीमार पुरसी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, ईद का दिन तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत खास दिन है। इस दिन अल्लाह ताला खुश होकर अपने गुनहगार बंदों की मगफिरत फरमाता है और अपने बंदों की हर जायज दुआ को कबूल करता है। इसलिए आप कल यानी कि ईद के दिन आप ये 12 काम जरूर करें। अल्लाह ताला आपसे खुश होकर इंशाअल्लाह आपकी हर जायज दुआ को कबूल फरमाए और आपको दोनों जहां में कामयाब फरमाएगा। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल ऐसा बन गया कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। हाल ही की खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मस्जिदों से हमने माइक हटा दिए। अगले 5 वर्षों में लोग मस्जिदों से निकलने वाली चीख यानी अजान को चीख कह रहे हैं कि मस्जिदों से निकलने वाली चीख, इसके बारे में लोग भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखें, उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम लोग आबाद रहते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां तक दे दी और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहता था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहां पर रहने के लिए जो सरकारी मकान मिला, रूम मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान शुरू हो गई, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंख खुल गई। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए वो उठकर मस्जिद में घुसा और मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह
صبح جلدی اٹھ کر آپ بھی پیدل چلا کرو, اس سے آپ کے جسم کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا. اور تو اور ہمارے پاس اس چیز کی پرمیشن ہے تو ہم کسی قانون کا النگھن نہیں کرتے. لیکن آفیسر تو مسلمانوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی من گھڑت باتیں سن سن کر ان سے پہلے ہی نفرت کیا کرتا تھا. اسی لیے وہ پھر اس آدمی کی ایسی باتیں سن کر غصے میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, اور یاد رکھنا خبردار اگر تم نے کل سے لاؤڈ اسپیکر پر صبح فجر کی اذان دی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. اور ایسے ہی اس آفیسر نے اذان دینے والے شخص کو کھری کھوٹی سنا کر بھیج دیا. مگر اس اذان دینے والے نے اس آفیسر کی بات پر کچھ خاص دھیان نہ دیا, کیونکہ مسجد کے پاس پرشاسن سے لیا گیا لکھت پرمیشن تھا, اور اسی لیے پھر اس نے اگلے دن صبح فجر کی وقت میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے دی. جیسے ہی صبح صبح اس آفیسر نے اذان کی آواز سنی تو وہ غصے سے لال ہو گیا, اور وہ فوراً اس اذان دینے والے کے پاس آیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا. اور یہی نہیں, غصے میں اس نے اس اذان دینے والے شخص کو تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا میں نے تم کو کل کتنا سمجھایا تھا کہ صبح اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی ہے, اسی لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان مت دینا, لیکن تم نے تو میری بات پر دھیان نہ دیا. بیچارہ اذان دینے والا اس آفیسر کو کیا کہتا, وہ تو تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا, یا اللہ جس نے تیری اس اذان کو دینے والے بندے پر ظلم کیا تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے, ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر عذاب نازل ہو گیا. یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا کہ جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا. اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا مگر صبح وہ اٹھ نہ سکا, کیونکہ اسی رات اس کے آدھے جسم پر لقوہ مار گیا تھا, جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے. اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا. یہ دیکھ کر آفس والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا. اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی. اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا. اس کی بیچاری بیوی اس کی بہت خدمت کیا کرتی تھی, اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی, اس کے کپڑے بدلتی, یعنی کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی, اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو صرف گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی. اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد میں اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی, اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور کہنے لگی کہ بھیا میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں, پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. اب میں یہاں پر اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی, اسی لیے آپ مجھے یہاں سے فوراً لے جائیے. یہ سن کر اس کا بھائی اسے فوراً لینے آ گیا اور پھر اس آفیسر کی بیوی بھی اپنی مائکے چلی گئی. اسی بیچ اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لقوہ پڑ گیا تھا. اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر گیا. اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی. اب آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا. اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے, اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا. یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا. اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کچھ کھا پی سکتا تھا. اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے, اب کون اس کے روزانہ کپڑے بدلوائے. ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ روز روز کا کام نہیں ہوتا. ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے اس بھائی کی بیوی سے بھی جھگڑا کر لیا. اس کو کوئی سخت بات کہہ دی کیونکہ ان کی وہ زبان کا اچھا نہیں تھا, اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی. اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی اب یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی. یہ سن کر بھائی نے سوچا
کہ इस बीमार भाई के चक्कर में मैं अपने परिवार अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, इसीलिए क्यों ना इस भाई को यहाँ से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया जहाँ एक मस्जिद थी। दोस्तों उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा, उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी, सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद कर दो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई तो मुझे कुछ खाने को दे दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। ये देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। ये देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम तो एक बड़े सारे ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी उस मुअज्जिन को पहचान चुका था। उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बताया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया और उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई कि आज मेरे पास में कोई खड़ा तक नहीं होता। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया, फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही साथ वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, इसीलिए थोड़े ही दिनों में उनकी सेहत अच्छी होने लगी और ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने के काबिल हो गया। तो प्यारे दोस्तों याद रखें, जो कोई मजलूम पर जुल्म करता है तो उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास में वक्त है सही मानों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। प्यारे दोस्तों हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरतों जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर लोग अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ये तो सिर्फ औरतों के लिए था, मर्दों के लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। प्यारे दोस्तों इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, आप इसे अपने तक ही ना रखें बल्कि अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटे पर भी क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहें। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। आपके वीडियो लाइक और शेयर करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो आप हमारा हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।